کرتے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے پریکٹیکلی 11 ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ 11 ججز نے یونانیمسلی اپنے اپنے نوٹ میں یہی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حقدار ہے ان سیٹوں کا۔ الحمدللہ جو 8 اور 5 کے تناسب سے جو اپیلیں الاؤ ہوئی ہے اس کے مطابق بھی سیٹیں واپس پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گی۔ آج سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ جو لوگ مٹانا چاہ رہے تھے وہ روایت ہو گئی ہے۔ ہم کمیشن کو استدعا کرتے، کمیشن سے مطالبہ کرتے فوراً کہ سپریم کورٹ کے ان احکامات پہ فوراً عمل درآمد کیا جائے، اور سب سے پہلے سپریم کورٹ ہمارے الیکشن کمیشن ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ ہمیں اسی ہفتے میں ایشو کرے۔ ہم پر بھی مطالبہ کرتے کہ جلد سے جلد ان احکامات پہ عمل درآمد کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزرو سیٹیں دی جائے تاکہ جو الیکشن رکا ہوا ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے اور وہ الیکشن ہو جائے۔ اس موقع پہ میں یہ کہتا ہوں اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیف منسٹر کے پی کے علی امین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا، جس نے بولڈ سٹیپ لیا تھا، جس نے ان کا عہد روکا تھا۔ ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نہیں دیکھو دوبارہ کرنے پڑیں گے، دوبارہ الیکشن کرانے کا کوشچن نہیں ہے، اور حاجی پیسہ نے ہی الیکشن یہ روٹین میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کے کیس میں بھی جو جج صاحبان ججمنٹ لکھتے ہیں وہ اپنا اپنا نوٹ پڑھ کے سناتے ہیں، تو قاضی پیسہ صاحب نے کچھ انمول نہیں کیا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، جب کوسا صاحب چیف جسٹس نہیں تھے پاناما کا کیس سن رہے تھے تو اعجاز افضل صاحب نے ہی اپنا نوٹ جو پڑھ کے سنایا تھا۔ یہ ہوتا ہے روٹین میں۔ دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے قاضی پائشہ صاحب کے خلاف اس کیس پہ عدم اعتماد نہیں کیا تھا، یہی مشورہ تھا اور یہ ہم نے چلایا تھا، آسان طریقے سے ختم ہوا۔ اب الحمدللہ ان کا 2/3 میجارٹی جو مانگ رہے تھے اپنے مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ روک گیا۔ آپ بھی کچھ بولے۔ دیکھیں یہ میں کہتا ہوں آپ سے، پاکستان کی عوام سے، آپ کو مبارک ہو، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے دن ہیں جب طاقتور اور جابر کے ارادوں کو مات دی ہو عدالت نے، جو یہ چاہتے تھے کہ سیٹیں ہم سے چھین کر اور ہمیں مال غنیمت کے طور پہ بانٹتے اور آئین کا حلیہ بگاڑیں۔ آئینی ترامیم کے ذریعے ان کے ارادے آج پاش ہوئے ہیں، آج آئین کی فتح ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے۔ میں عوام کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آج ہم نے ایک قانونی جنگ جیتی ہے، اب ہمیں سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے۔ پاکستان کے عوام کا جو ارادہ تھا 8 فروری کو، اس کو سلب کیا گیا، اس ارادے کو ہم نے اب منوانا ہے اور ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آج کی قانونی فتح ایک قدم ہے اس منزل کی جانب۔ ہماری منزل یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، پاکستان میں آئین کا دورہ ہو، اور جو لوگ آئین اور جمہوریت کو پامال کرنا چاہتے ہیں ان کو شکست ہو۔ ہم کھڑے ہیں سیسا پلائی دیوار کی طرح، ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے۔ میں آخر میں پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی صدر طول شاہ زیب صاحبہ کے بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہیں بڑا رول پلے کیا ہے یہ پرائرٹی لسٹیں فائنل کرنے میں۔ رات 4 بجے تک یہ جاگتی رہی، میرے سے وہ لسٹیں فائنل کرتی رہی، اور اس مقام تک لانے میں ان کا بڑا رول ہے۔ ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے خیالات کا بھی۔ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولنے آ رہی جی نہیں، یہ نہیں تھا، یہ اپیل ہے، ہم نے پٹیشن فائل کر دی تھی، پٹیشن اس سے آگے کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے آپ، اور کچھ نہیں ہے، مزید کوئی اپیل نہیں ہے۔ کمل بولیے اب آپ۔ جی اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی پوری دنیا
तरीके से जमहूरियत का इस्तेसाल किया गया, अवाम के मैंडेट का खून किया गया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया। आज इस अदालत ने इस बात का यकीन दहानी कराई, इस बात का इकरार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफी हुई, अवाम के साथ नाइंसाफी हुई, अवाम वोटर के साथ नाइंसाफी हुई और आज वो नाइंसाफी देखे अंडू हुई है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी अदालत का कि उन्होंने आइन की स्पिरिट के मुताबिक जमहूरियत को मुस्तहकम किया है। उन्होंने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसको वोटर्स ने वोट दिया था उसको वापस असेंबलियों तक लेकर आए हैं, जिसको जबरदस्ती बाहर निकाला गया था। अब मेरा इसी बड़ी सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि हमारे लीडर को इल्लीगल तरीके से नाजायज और झूठे केसेस बना के जबरदस्ती कैद में रखा गया है, उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है वो उस सलूक को डिजर्व नहीं करते, वहाँ भी इंसाफ करें। इमरान खान की पिटिशंस को फौरन लगाया जाए और फौरी तौर पे इंसाफ दिया जाए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बैरिस्टर गौहर साहब का, जिन्होंने इस पूरे मुश्किल वक्त में खवातीन विंग का साथ दिया, सलमान अकरम राजा साहब का कि इन्होंने इस मुश्किल वक्त में, इस वक्त जब हम इतनी फसाइयत का दौर था, इन्होंने ये केस हमारी आवाज बन के, अवाम की आवाज बन के इस सुप्रीम कोर्ट के हाल ये जो कोर्ट नंबर 1 में इसको इस अवाम की आवाज बने। नियाजुल्लाह नियाजी साहब का, जिन्होंने स्टोलन मैंडेट पे आवाज उठाई, हमारे तमाम वकला ILF और अब बिलखसूस अपनी विमेन विंग का, जिन्होंने ना दिन देखा है ना रात देखी है और ना उन्होंने सीटों की कभी लालच की है, लेकिन वो पाकिस्तान के नजरिए के साथ खड़ी है, वो इंसाफ के नजरिए के साथ खड़ी है, वो इंसाफ का बोलबाला करने वाले लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है। आज अल्लाह की तरफ से मदद आई है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज उन खवातीन को जिनका हक बनता था, जिनको अवाम ने वोट दिया उस पार्टी को वापस ऐवान में लेकर आई। मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। एक मिनट मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आईन ये अवाम के मैंडेट डाका मारे हुए चोरी शुदा मैंडेट को जब तक बहाल नहीं करती है अदालत, तब तक अवाम इधर खड़ी है। मैं तो 2 मिनट की बात कर रहा हूँ। ये यकीनी बनाई जाए, मैं आज इमरान खान की जीत हुई है। आज हम लोगों ने, मैंने भी अपने आप को साफ कर रखा हुआ था, हमारे सारे फॉर्म्स में अपने पाकिस्तान रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने हक और इंसाफ पर मबनी फैसला दिया। बैरिस्टर गौहर का ये कहना था, उन्होंने कहा कि आज हमें हमारा हक मिल गया, आज हमारी सीटें हमें मिल गई हैं, सीटें वापस PTI को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख में लिखा जाएगा। आज 25 करोड़ आवाम के लिए खुशी का दिन है। जी हाँ, आज 25 करोड़ आवाम के लिए खुशी का दिन है। अहम और बड़ा फैसला आ गया। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। आसिफ नवीद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं? अदालत के बाहर है, तो अदालत के बाहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू भी जारी है। मौक़िफ़ हमारे पास PTI का आ गया। हुकूमती नुमाइंदे इस वक्त क्या कह रहे हैं? देखिए, इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के यहाँ पर बड़ी इनामाक से हमने देखा कि जो वकला हजरात थे और आवाम थी यहाँ पर मौजूद, उन्होंने फैसला सुना। फैसले के फौरी बाद चूंकि अब इसका रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो गया है, इस वक्त हमारे साथ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं रियासत अली आज़ाद, वो मौजूद हैं। उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ था इस फैसले के हवाले से। गुज़श्ता काफ़ी रोज़ से हम उनकी इस हवाले से बातचीत भी सुनते रहे। आज भी जो फैसला आना था उससे पहले भी उनसे बातचीत हुई थी। चूंकि अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो कालादम करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था वो भी कालादम करार दे दिया गया है और
तो इस वक्त हमारे साथ रियासत अली आजाद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रियासत साहब, ये बताइएगा कि आप इस फैसले को कानून में किस नजर से देखते हैं? काफी आप तो इस हवाले से काफी एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये आइन और कानून की फतह है, चूंकि मेरा शुरू से आज तक स्टांस यही रहा है कि जो इर्रेगुलरिटी हुई है, जो कि इन्होंने पहले इलेक्शन रूल्स के मुताबिक जो सेक्शन 104 सब सेक्शन 4 था उसके तहत पीटीआई ने वो देनी थी, लिस्ट नहीं दी। ये इर्रेगुलरिटी थी, इलीगैलिटी नहीं थी, चूंकि जो आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जी आपको मखसूस नशिस्तें जितनी सीटें आप जीत के आते हैं प्रोपोर्शनेट आपको उसके मुताबिक रिजर्व सीट्स मिलनी है। तो 51 के अंदर किसी जगह पे ये प्रोवाइडेड नहीं था कि आपने किस पॉलिटिकल पार्टी को, सिर्फ उसके अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पार्लियामानी पार्टी। तो मेरा इस हवाले से ये मौक़िफ़ था कि लॉ फेवर दी एडजुडिकेशन ऑन मेरिट रादर देन दी टेक्निकलिटीज। तो जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था वो टेक्निकलिटीज पे मबनी था, और आज जो सब्सटेंशियल जस्टिस हुआ है, जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ है, जिसके अंदर जैसे जुल्फकार अली भुट्टो केस में आर्टिकल 10 जो था उसको भी उन्होंने कहा कि नहीं मिला था, लेकिन उसको उन्होंने आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसके तहत उसको दुरुस्त कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। तो इसमें भी ये एक छोटी सी गलती थी कि लिस्ट पहले नहीं दी, बाद में दी, चूंकि हालात ऐसे थे जब इलेक्शन हुए तो वहां पे तो एक डायलमा की सिचुएशन थी। तो अब उन्होंने ये भी कह दिया कि आप 15 दिन के अंदर वो दें, तो वो एक गलती थी, उसको उन्होंने दुरुस्त कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, आइन और कानून के मुताबिक है, चूंकि जिनका हक था उनको हक मिल गया और पीटीआई पार्टी भी बहाल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस गलती को भी मान लिया था कि हमारे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया है। आज पीटीआई बहाल भी होगी एज ए जमात और उनको सीटें भी मिल गई हैं। और दूसरी बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अब नहीं रही। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एज अ पार्टी बहाल भी होगी और उनको सीटें भी मिल गई। यही आइन का मैंडेट कहता है, यही इलेक्शन एक्ट का मैंडेट कहता है, यही इलेक्शन रूल्स कहते हैं। देखें, रूल्स के अंदर एक इरेगुलरिटी जो थी दैट वाज नॉट अबव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 51 है उसके अंदर तो सिर्फ क्वांटम ऑफ वोट का था। इनकी सीटें किसी और को बांट देना ये आइन और कानून और इलेक्शन रूल्स और एक्ट में नहीं था। दरखास्त गुजार तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, तो रिलीफ उन्होंने मांगा था, तो पीटीआई देखें चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि हमारी जो जजमेंट थी जिसको गलत इंटरप्रेट करके इनसे बल्ले का निशान भी ले लिया गया और इनको एज ए जमात इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया, तो वो गलत हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल भी कर दिया है। अब जाना तो उसी आइडेंटिफिकेशन से था जिससे वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, तो वो तो सुन्नी इत्तेहाद के नाम से थे, गए तो उसी नाम से। लेकिन अब चूंकि एक सब्सटेंशियल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मेरा हमेशा, मैं जहां भी ये बात की, मेरा क्लियर कट व्यू यही था कि इसको मेरिट पे फैसला होना चाहिए। एक शख्स 100 नंबर का पेपर देता है, उसको 120 नहीं दिए जा सकते। किस लॉ के तहत आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जो पीटीआई वाले जीत के उनकी सीटें आप किसी और को दे दें? ये अनजस्टिफाइड था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलीगल था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी है जिसको आइन और कानून की सपोर्ट हासिल। जी, जिस तरह के सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक है और आज का जो फैसला है ये एक तारीख रकम हुई है, इससे कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई थी उसको तस्हीह भी की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बहाल भी हो गई और उनको बल्ले का निशान भी मिल गया और हकीकी रिलीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिला है। जी, एक बड़ा दिन है और जिस तरह की डेवलपमेंट आज सामने आई है, बड़ा फैसला सामने आया, उसमें पीटीआई के हक में फैसला दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून वक्कास अब्रेज साहब। वक्कास साहब, जिस तरह से फैसला आया है, क्या समझते हैं कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं इस फैसले के अंदर? क्योंकि जिस तरह से पीटीआई भी बार बार ये कह रही थी ये सीटें हमारी हैं, ये सीटें हमारी हैं, और आज कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो तमाम तकाजे पूरे करते हुए पीटीआई को आज अहल करार दिया जा चुका है। I think this is a landmark decision in the political and judicial history of पाकिस्तान। और इस फैसले के अंदर जो आपने बात की कि कानूनी तकाजे पूरे होते नजर आए, बिल्कुल इस फैसले के अंदर आइन की हाकमियत और बालादस्ती की जो है ना वो एक हमें कवि झलक नजर आई। वो इसलिए कि आइन का आर्टिकल 51 और 106 जो है ये दोनों आर्टिकल्स हैं जो कि नेशनल असम्बली के अंदर, प्रोविंशियल असम्बली के अंदर जो है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं और जो भी मेंबर्स जीतते हैं उनके बिहाफ के ऊपर उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद के ऊपर जो 70 नशिस्तें हैं हमारी कौमी असम्बली में 10 अक़लियतों की और 60 खवातीन की,
उसको डिवाइड किया जाता है। जो पार्टी के जिन्होंने जिस एक्सपीरियंस से अपने जो है वो मेंबर्स वहाँ पे उनके मौजूद होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी थी कि ये जो इनकी महसूस नशिस्तें थी वो दीगर जमातों के अंदर तकसीम कर दी गई, और जब ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया तो उसी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अपहेल्ड किया गया। लेकिन आज का जो फैसला है ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल जुडिशल हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे पहले जो अजम्पशन थी, हिपोथेसिस थी, कुछ लोगों का ये कहना था कि शायद आज का जो फैसला है वो नजरिया ज़रूरत के मुताबिक दे दिया जाएगा, जिस तरह 1954 के अंदर जस्टिस मुल्ज़म मलिक की अदालत ने दिया। लेकिन आज का जो फैसला है इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और आज से 4-5 महीने पहले जब हम इस केस के ऊपर बात करते थे, आई वॉज वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि पीटीआई की जो जमात थी वो तो मौजूद थी, इनसे तो सिंबल लिया गया था। तो पीटीआई का जो सबसे बड़ा एरर था, ये इनके पार्ट में बहुत बड़ी कच्ची थी, ये नक्श था, वो ये कि आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अलाइनमेंट की जरूरत ही नहीं थी। आज के फैसले के अंदर भी ये कहा गया कि पीटीआई बतौर सियासी जमात तो मौजूद है, क्योंकि अगर किसी भी सियासी जमात को आपने खत्म करना है तो उसके लिए आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत इंटीरियर मिनिस्ट्री उसको बैन करेगी और फिर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजेगी, और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व होगी। जब आपकी पार्टी पहले से ही इलेक्शन कमीशन की इन लिस्टेड पार्टीज की लिस्ट के अंदर मौजूद है, तो आपको क्या जरूरत थी कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अलाइनमेंट करते और वहां से जाके अपनी महसूस नशिस्तें सीख करते। तो जो सुप्रीम कोर्ट का आज जो सीरीसी फैसला है, आई मस्ट एप्रिशिएट एंड एंडोर्स दिस डिसीजन, ये पाकिस्तान के जो जितने भी पॉलिटिकल जुडिशल हिस्ट्री के अंदर फैसले हैं उसके अंदर ये सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और आज जिसका ये शरीफी फैसला है, और इसके अंदर जो अब 15 दिन का टाइम दे दिया पीटीआई को, और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने हाल ही के अंदर 63(1)(a) का फैसला देखा, जो बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला जो था वो भी रिवर्स कर दिया गया कि वो भी जो फैसला था गलत था। लेकिन आज की जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, शायद कल कला को जो आने वाली सुप्रीम कोर्ट है इस पर उंगलियां नहीं उठेंगी। अच्छा वकास साहब, आपने आर्टिकल 51 की बात की, अगर आर्टिकल 51 की अगर हम बात करें तो उसमें ये भी वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि सियासी जमातों के हुकूक यकीनी बनाता है वो। अगर ओवरऑल हम देखें तो ये 2018 के इलेक्शन की भी ऊपर सवाल रेज होते हैं कि 2018 के इलेक्शन के अंदर बाप पार्टी को सीटें कैसे मिल गई, जो 2024 के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन इस चीज को डिक्लेयर नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल, देखिए वो जो 2018 के इलेक्शन थे दैट वाज द पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, क्योंकि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस डिसाइड किया गया या दीगर केसेस के ऊपर बातें की गई, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से मामला के अंदर जो हमारी प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट की पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन थी उसमें कहा कि हमारा कसूर है और हमारी झोली के अंदर बहुत सी ऐसी कमियां, चर्जियां, नकायत और बहुत सारी ऐसी चीजें हमसे हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। दैट वाज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब जो आज का फैसला है, अगर हम इस पढ़ाई के अंदर देख लें तो अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलती की थी और ये इस चीज़ की कभी भी तस्दीक या दलील नहीं हो सकती कि आज भी सुप्रीम कोर्ट उसी चीज़ों को लेकर चले, तो आज का जो फैसला है ये हमारे माजी के तमाम फैसलों में से एक बेहतरीन फैसला है कि शायद आइंदा आने वाले वक्त में हमें क्रिटिसिज्म फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस फैसले के अंदर ठीक है। वकास सबरी साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। आपने कहा कि माजी के फैसलों से ये बेहतरीन फैसला है। साथ ही रहिएगा, रुक करेंगे एक बार फिर से आमिर जिया की जानिब। आमिर साहब क्या कहेंगे, एक आईनी बहरान था असेंबली में, क्या लगता है अब इस फैसले के बाद वो आईनी बहरान टल गया? एक बात जो वकास साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बड़ा सुनहरी हरूफ पे लिखा जाने वाला फैसला है। और जो मैंने पहले अर्ज किया था कि पाकिस्तानी सियासत में नादानिस्ता या दानिस्ता तौर पे जो टेढ़ापन लाया गया था उसको ये फैसला दूर करता है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार रहा है मुतनाज़ा, ये दोबारा से अंडरलाइन हो गया है और मेरे ख्याल में यहाँ पर अब उसको इलेक्शन कमीशन को रिव्यू करना चाहिए कि भाई आपकी एक जिम्मेदारी थी कि मुल्क में मुंसिफाना इंतखाबात करें और पूरे प्रोसेस को साहब आपका मजीद भी पॉइंट लेंगे। सर साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राजा खालिद साहब। सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर अहम और बड़ा फैसला आया है, फैसला 8-5 से सामने आया है, कानूनी तौर पर आप इस केस को कैसा देख रहे हैं? देखें, कानूनी तौर पे मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन बात है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मजीद आईनी बहरान का शिकार हो गया, क्योंकि जो आइन का आर्टिकल, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये मैं बात कहता हूँ कि आर्टिकल 51 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसका आर्टिकल 6 उसका सब जो क्लास है वो डी, वो ये कहती है कि रिजर्व सीट्स उन ही पार्टीज को दी जाएंगी प्रोपोर्शनल जिनकी नुमाइंदगी होगी ऐवान के अंदर, और जिन्होंने अपनी जो लिस्ट हैं वो इलेक्शन कमीशन में विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम
वो जमा करवा दी थी। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह जो हमारा एक्ट है 2017 का, उसकी सेक्शन है 104, वो भी यही कहती है कि आपने वो ये सीटें उस पार्टी को देनी है कि जिसने मुकर्रर वक्त के अंदर नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए रिजर्व सीट्स पे और लिस्ट प्रोवाइड की। लेकिन यहाँ पे ऐसा कतन कुछ नहीं हुआ था, और मैं समझता हूँ कि इस हद तक एक बार फिर मुझे नजर आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अदालतों का काम नहीं बनता कि वो रीराइट करें, बल्कि अदालत का काम तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई एम्बिग्विटी है उसे रिजॉल्व करे, कोई इबहाम है किसी क्लास के अंदर उसे रिजॉल्व करे, और आइन की कानून की तशरीह करना ये कोर्ट्स का काम होता है। जब मैं यानी मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि आइन को अगर कोई एब्रोगेट करता है, आइन को कोई सस्पेंड करता है, आइन की किसी क्लास को अगर कोई सबवर्ट करता है, तो उसके हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सजा मौजूद है आर्टिकल 6 के तहत। यानी ये मैं एक स्टूडेंट के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो क्या आइन को रीराइट करना ये किसी को इजाजत दी जा सकती है, किसी कोर्ट को, किसी फर्द को, किसी अदारे को, जब तक उसे असेंबली जो है, ये जो हमारा पार्लिमान है, पार्लियामेंट, सेनेट और कौमी असेंबली 2/3 अक्सरियत से अमेंड ना कर दे, जो प्रॉपर प्रोसीजर ले डाउन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बार बार रीराइट हो रहा है, उसका हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। कभी कोई आमिर आता है, उसमें अपनी मर्जी की क्लासेस दाखिल करता है, और फिर या सुप्रीम कोर्ट के फैसले उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे देते हैं, वो प्रोटेक्शन दे देते हैं, और वो फिर वो क्लासेस जो हैं या वो जो आर्टिकल्स हैं वो A, B और C और AAA और AA बन के तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल राजा साहब, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, और जैसे कि आपने भी कहा कि अमेंडमेंट होती रहती है तो उससे कंफ्यूजन भी काफी हद तक क्रिएट होती है। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक, जिस तरह से ओवरऑल आज हम सिनेरियो देख रहे थे या पूरा हमने जब फैसला देखा, अगर हम फैसले की बात करें 2018 के इलेक्शन पे भी सवालात उठते हैं, और साथ इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी दस्तावेज